A very good morning to all of you. This is Mr. Faisal Sheikh, your mathematics teacher. Students, today we'll discuss about chapter number 12, class 10 mathematics. The name is area related to circles. We have already started the chapter. We are done with exercise 12.1. We are proceeding and commencing with exercise 12.2, for which we have already done 4 sums. So today we'll start with the 5th sum. But as of now, as I have not introduced the formulas from my side, so first I'll like to introduce all the formulas for this chapter from my side. So what actually the content is and what actually we all need to understand as far as the content of this chapter is concerned. So let us start with the area of a circle. So as this chapter is related to the circles, we'll be finding the area or the measurements of the different parts of the circles. So for example, if this is a circle, uh, actually I am doing this as well because many students have requested me for the content part and the understanding part of this chapter. So I'll try my best to deliver the content at my best, from my best knowledge. So as we know that this is the circle, the center is there, we have a radius, right? So this is the common part. बाहर वाले पार्ट को हम बोलते हैं circumference, ठीक है? Diameter होता है twice of the radius. So these are the things that we already know. So the additional things that we are supposed to know in this chapter is, the very first is sector and second one is segment. So ये दो चीज को हमें समझ लेना है. What are these two things in this chapter? So अगर हम सेक्टर की बात करें, so पहले तो ये सर्कल है, ठीक है? सर्कल के अंदर रेडियस और आपके पास आ जाता है डायमीटर, ठीक है? You also know that this, if a line segment is intersecting the circle in two distinct points, suppose A or B, so such line segment is being considered as chord. उसको क्या बोला जाता है? Chord बोला जाता है. If a line is intersecting the circle in two distinct points PQ, that is known as secant. इसको हम बोलते हैं secant, ठीक है? So ये informative part है, आपको याद रखना है. I'm drawing one more circle. अब हम move on होते हैं सेक्टर पे. तो फॉर एग्जाम्पल लेट दिस बी ए सर्कल विद सेंटर O, ठीक है? अगर इस सर्कल के अंदर एक कॉर्ड है, सपोज AB, so this AB is creating two parts in the circle, this part, right, and the outer part, right? So these two parts are known as the segment. तो जो आई वुड से कॉर्ड से डिवाइड होता है, जो सर्कल का पार्ट कॉर्ड से डिवाइड होता है, उस पार्ट को आप बोलोगे सेगमेंट. उस पार्ट को आप क्या बोलोगे? सेगमेंट. You can see the size of the two segments are differing from one another. This is the small one, this is the large one. As it is a small one, it is considered as a minor segment. ऊपर वाला जो segment होगा वो consider होगा major segment. So ये दो पार्ट हो गए, ठीक है? So segment प्रिपेयर हो रहा है कॉर्ड की वजह से. That is due to the division of a circle and that is due to the chord. अगर हम बात करें सेक्टर की, तो जो सेक्टर क्रिएट होता है that is being divided from that part is being divided due to the radius of the circle. So this is also radius, ये भी radius है, दोनों ही radius है. So आप देख सकते हैं सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है. ये पिज्जा की स्लाइस जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है. So this part which is looking like a pizza slice is known as a sector. इसको आप बोलोगे सेक्टर. अगेन डिफरेंस है साइज के अंदर, ये स्मॉलर वन है इसीलिए इसे हम बोलेंगे माइनर सेक्टर. ये ग्रेटर वन है तो इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर, ठीक है? तो सबसे पहला कंफ्यूजन ये हमें दूर करना है अबाउट सेगमेंट एंड सेक्टर. सेकंड और कॉर्ड में भी क्या डिफरेंस है मैंने आपको समझा दिया है. तो ये चीजें पहले आपको समझ लेनी है. व्हाट एग्जैक्टली द सेक्टर इज, व्हाट एग्जैक्टली द segment. So we have two formulas to find the sector और segment, ठीक है? फॉर्मूला कैसे प्रिपेयर होती है वो बता देते हैं. दूसरी एक और बात जो इस
सेक्टर्स की वजह से क्रिएट हो रहा है या सेगमेंट की वजह से जो सर्कल का एक पार्ट क्रिएट हो रहा है, वो पार्ट को हम बोलेंगे आर्क. If I highlight the boundary of the circle, that is the circumference of the circle, उस पार्ट को मैं हाईलाइट करूँ जो सेक्टर के एंड पॉइंट्स के साथ है, मतलब उसके अंदर है. सो ये जो बाउंड्री लाइनअप है, दैट बाउंड्री लाइनअप इज नोन एज द आर्क. इसको हम बोलेंगे आर्क. ठीक है. छोटी वाली आर्क है तो इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क. ये बाहर वाली जो आर्क होगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ मेजर आर्क. मेजर आर्क ऊपर वाला होगा और नीचे वाला हो जाएगा आपका माइनर आर्क. ठीक है. सो ये दो चीज़ आपको और ध्यान रखनी है. ठीक है. सो हमारे पास दो फॉर्मूलाज है. एक फॉर्मूला है सेक्टर की है और दूसरी जो फॉर्मूला है वो है आर्क की है. देख लेते हैं सेक्टर की क्या है. ठीक है. सो ऐसे लिखा जाता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिखा जा सकता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है. θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ये फॉर्म में मैं लिखना पसंद करता हूँ. उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है. और अगर मैं बात करूँ एरिया ऑफ अ माइनर आर्क की, एरिया ऑफ अ माइनर आर्क, अगर मैं इसकी बात करूँ सो इट इज नथिंग बट θ/360 इंटू 2 पाई. अब देखिए ये फॉर्मूला आपके लिए समझने में बहुत इजी हो जाएगा और याद रखने में भी बहुत इजी हो जाएगा. अगर आप सेक्टर की बात करते हैं, सेक्टर एक पूरा एरिया है. आप देखिए कंसीडर कीजिए, दिस इज नथिंग बट द एरिया. ठीक है. और एरिया ऑफ अ सर्कल हमें पता होता है वो हमेशा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है. एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है. अगर मैं आर्क की बात करूँ तो आर्क इज नथिंग बट अ लेंथ. आर्क क्या है, एक लेंथ है ना. सर्कमफ्रेंस प्रोबेबली एक लेंथ है, उसका एक पार्ट हमने निकाला, मतलब पूरे सर्कमफ्रेंस में से कुछ पार्ट निकाला तो वो भी एक लेंथ है. राइट. सो अगर हम आर्क की बात करें तो वो क्या है, एक टाइप का लेंथ है. ठीक है. और लेंथ, अगर हम सर्कमफ्रेंस की बात करें तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2 पाई आर. सो जब भी आपके दिमाग में है आर्क, अगर आपको आर्क का फॉर्मूला यूज करना है तो आपको समझना है सर्कमफ्रेंस यूज करते हैं. सर्कमफ्रेंस का कुछ पार्ट है तो सर्कमफ्रेंस से आप याद रख सकते हो 2 पाई आर. अगर आप सेक्टर को, एरिया ऑफ अ सेक्टर यूज करना चाहते हो, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो इट्स एन एरिया, इसीलिए हम यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर. तो θ/360 सेम है. एरिया ऑफ अ सेक्टर में पाई आर स्क्वायर आएगा. एरिया लेंथ ऑफ द माइनर आर्क आएगा, नॉट द एरिया. इट शुड बी लेंथ ऑफ माइनर आर्क. सो लेंथ जो है वो आपका हो जाएगा 2 पाई आर. नाउ द क्वेश्चन arises व्हाट दिस थीटा इज. ये थीटा क्या है. सो ये जो सेक्टर क्रिएट हुआ है एक सर्कल में, फिर से एक बता देता हूँ यहाँ पर. ठीक है. सपोज दिस इज अ सर्कल, ये एक सेंटर है. यहाँ पर अगर इस तरीके से क्रिएट हुआ है एक सेक्टर, ये जो एरिया, जो एंगल है, जो जिससे मतलब जो रेडियस दोनों जो है वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है, उस एंगल को हम डिनोट करते हैं थीटा से. So the angle subtended by the radius at the center of the circle is being considered as the theta. उसको हम थीटा से डिस्क्राइब करते हैं. तो यहाँ पर जो भी एंगल दिया हो, मोस्ट प्रोबेबली आपको एंगल दिया हुआ होता है 60 डिग्री होगा. वॉट एवर द एंगल इज, वो वैल्यू यहाँ पे आपको पुटअप करनी है और रेडियस की वैल्यू पुटअप करनी है, तो आपको आंसर मिल जाएगा. सो इन दिस चैप्टर बेसिकली यू हैव ओनली 2 formulas and the rest of the formulas are being made. कैसे प्रिपेयर होता है वो भी देख लेते हैं. सो सेक्टर तो हमने समझ लिया है. अब बारी है समझने की सेगमेंट को. हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सेगमेंट. तो देखिए, दिस इज अ सर्कल. ठीक है. ये आपका सर्कल है. अब आपको एरिया ऑफ अ फाइंड करना है सेगमेंट. सपोज आपका एक सेक्टर क्रिएटेड था. ठीक है. ये आपका सेक्टर क्रिएट, मैंने सेक्टर के अंदर एक कॉर्ड बनानी. ठीक है. सो सपोज ये आपका O है, ये है A, यहाँ पर है B और ये जो पॉइंट है C. तो आपका जो सेक्टर है वो है OACB. ठीक है. सेक्टर को पूरा नाम देना है. सेक्टर का नाम होगा OACB. 4 वर्टाइसिस से इसका नाम दिया जाएगा. ठीक है.
अब आपको एरिया ऑफ अ सेगमेंट अगर फाइंड करना है तो देखिए मैं इस पूरे पार्ट को अलग कर देता हूँ. सो दिस होल पार्ट इज बीइंग डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द फिगर और मैं यहाँ पर आपको बता दें. सो दिस वाज द सेक्टर. जो हमारे पास जो पहले जो पीस है वो है एक तरीके का सेक्टर. हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके एक ट्राइंगल बना देते हैं एक सेक्टर के अंदर. तो ये था ओ ए, यहाँ पे बी और यहाँ पर सी. एरिया ऑफ अ सेगमेंट अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा. ठीक है. सो सेगमेंट हो जाएगा आपका एसीबी. एरिया ऑफ सेगमेंट एसीबी अगर आपको फाइंड करना है तो क्या होगा. एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना. पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर आप इस एरिया को माइनस कर दोगे, ये जो एरिया है इस एरिया को आप माइनस कर दोगे, so you'll be able to find, you will be left with the area of the segment. ठीक है. so this is the formula area of a minor segment. actually ये minor segment के लिए, ठीक है. so ये आपका इस मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट. सपोज आपको मेजर सेगमेंट फाइंड करना है, फिर क्या करना पड़ेगा. सो इन दी सम पहले आप फाइंड करोगे माइनर सेगमेंट, उसके बाद अगर आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ अगर मेजर सेगमेंट फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई. एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. एरिया ऑफ पूरे सर्कल में से, देखिए फिर से देख लेते हैं. ये आपका सर्कल है, यहाँ पे आपकी कॉर्ड है, ये आपका माइनर सेगमेंट है. पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट को आप माइनस कर दो तो क्या बचेगा. एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट. सो दीज आर दी ways you can find the area of the major segment and the minor segment. So these are the explanations as far as the formula is concerned. So we'll start with question number 5 of example exercise 12.2. Okay, so we'll start with exercise 12.2. Question number 5. I'll read the question from my side. You may read it from your textbook. The question says, in a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc, area of the sector and area of the segment. ठीक है. So आपको बोला है the radius is 21 and angle is given as 60 degree. So first we'll try to analyze the figure. Okay, so let that be the circle having one center. Consider that center is O. Prepare to radius radii. So radii are being given as 21 centimeter. So write 21 over here. And you are being told that the angle at the center is nothing but 60 degree. So 60 degree angle is given to us. सबसे पहले आपको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द आर्क और सॉरी लेंथ ऑफ द आर्क. सो द वेरी फर्स्ट इज लेंथ ऑफ आर्क. लेट द आर्क बी 2 पॉइंट्स A B एंड हियर लेट इट बी C. ठीक है. सो ACB और उसके ऊपर ऐसे आपको करना है. सो द आर्क ACB. सो वी नो लेंथ के लिए हम यूज करते हैं सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला. सो दैट इज थीटा बाय 360 इनटू 2 पाई r. ठीक है. एक और सजेशन दूंगा गाइस, व्हेनेवर यू आर प्रैक्टिसिंग दी सम्स ऑलवेज राइट दी फॉर्मूला. उससे दो फायदे होंगे. एक तो ये होगा कि आपको वैल्यू कहाँ कैसे प्रूव करनी है वो पता चल जाएगा. दूसरा फॉर्मूला लिखने से आपका फॉर्मूला रिवाइज होता रहेगा और हमेशा आपके माइंड में फ्रेश रहेगा. आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा लेंथ के अंदर और एरिया के अंदर. ठीक है. सो विल पुट अप दी डिटेल्स. थीटा की जगह पे हम रख देंगे 60, नीचे 360 एज इट इज 2. पाई की वैल्यू आई थिंक सो इट शुड बी 22/7 इंटू आर दिया गया है आपको 21. ठीक है. सो हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं 6 6 जार. ठीक है. यहाँ पर कट हो जाएगा 3 7 3 जार. देखो 2 3 जार 6 होता है तो ये 6 के साथ कट हो जाएगा. सो द रिमेनिंग विल बी 22 सेंटीमीटर. यूनिट आपको अच्छे से ध्यान रखना है बिकॉज रेडियस आपको सेंटीमीटर में दिया है तो लेंथ इसमें होगी आपकी सेंटीमीटर में ही होगी.
नाउ यू आर सपोज टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर. सो सेकेंड क्वेश्चन है एरिया ऑफ सेक्टर. अब सेक्टर मैंने आपको बताया था 4 वर्टाइसिस से होता है. सो ओ ए बी सी बी कंसेक्यूटिव होना चाहिए. ओ ए सी बी इज इक्वल्स टू अगेन द फॉर्मूला ऑफ द सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, थीटा की जगह पर आप लिख दीजिए 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की जगह पर आपको लिखना है 22/7 आर स्क्वायर. सो राइट इट एज 21 इंटू 21, डोंट राइट 21 स्क्वायर. ठीक है, तो ये कंप्लीट होके हो जाएगा 6. यहाँ पर होता है 7 3 ज़ा 21 होगा, 3 2 ज़ा 6 होगा, 2 11 ज़ा होगा. तो अगर आप ये दो को मल्टीप्लाई करेंगे सो 21 इंटू 11 1 2 1 2, सो इट विल बी 231. सो एरिया हो जाएगा आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया आपका हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट, आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ अ सेगमेंट. तो उसके लिए अब आपको चाहिए यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया. अब आपको यहाँ पर चाहिएगा ट्राइंगल का एरिया. सो दिस एंगल इज ऑलरेडी बीन गिवन 60 डिग्री. अब देखिए हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है. देखिए अगर मैं कुछ नहीं सोचता हूँ ट्राइंगल ओ ए बी के बारे में, ठीक है, सो एज दिस इज गिवन 21 दिस इज 21, मतलब ये आइसोसेलेस तो पहले कंसीडर हो चुका है. ठीक है, अब ये एंगल 60 डिग्री है. अगर आइसोसेलेस होता तो आइसोसेलेस है तो पहले इसको 60 डिग्री लिख देता हूँ. अब और ये दोनों 21 है तो इसका मतलब दो साइड सेम है तो ऑपोजिट एंगल्स भी सेम हो गए. अगर ये दो एंगल इक्वल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये दो टोटल हो जाएगा 120 और इक्वल है तो 60 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, सो अगर 60 डिग्री एंगल है तीनों तो ये तो ट्राइंगल कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो विल जस्ट राइट अबाउट द ट्राइंगल दैट इन ट्राइंगल AOB एंगल OAB सॉरी AOB is equals to 60 degree. Therefore triangle AOB is an equilateral triangle. आपको इसको अलग से कुछ ज़्यादा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. इट इज टू बी अंडरस्टूड कि अगर वो एंगल 60 डिग्री है तो ट्राइंगल इक्विलेटरल ही बनेगा. अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, या तो हम ऐसा कर सकते हैं डायरेक्टली सेगमेंट का फॉर्मूला रख दीजिए, अलग अलग फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट. सो एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. सेक्टर का एरिया कितना है आपके पास 231, लिख दीजिए यहाँ पे. तो दैट इज 231 माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला भी हमारे पास है √3/4 a स्क्वायर, है ना. ये a स्क्वायर क्या होता है भाई, जो साइड होती है वही होगा. साइड 21 है और 21 लिख देंगे. सो 231 माइनस √3/4 इंटू a स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21. And by God's grace, I have some calculation done for this sum. So, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे so सीधा आपको ये लिखना पड़ेगा दैट इज 231 माइनस, आपको टेक्स्ट बुक में भी आंसर दिया हुआ है इसी तरीके से, 441√3/4. ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको आंसर दिया गया है. अब आपको क्वेश्चन आएगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि यही आंसर हमें लिखना है. सो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखिए √3 की वैल्यूज आपको पता है दैट इज 1.73. ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको 1.73 लेके इस पार्ट को सॉल्व कीजिए और जो भी आंसर आता है उसको लिख दीजिए. डेसिमल में होगा, देयर माइट बी सम डिफरेंस इन द डेसिमल. सपोज अगर हम कैलकुलेशन करते हैं और आंसर डेसिमल के बाद आ रहा है फॉर एग्जांपल 48 and for some reason your answer is 46 or maybe more than 48 or there is some difference between your answer after the decimal, but decimal के आगे जो नंबर है वो अगर करेक्ट है तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. सो दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग द सम. आपको सेगमेंट के फॉर्मूला के लिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल अलग से फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप फॉर्मूला में पुट अप करके इसको सॉल्व कर सकते हैं. लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6. इसको रब कर देते हैं.
सो गाइस अ वेरी इजी चैप्टर, बहुत ही इजी है और ये चैप्टर बहुत ही आई कुड से स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। इजीली आप इस चैप्टर के सम्स को सॉल्व कर सकते हो अगर आप इसके बेसिक को समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6, a chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle. सीधा आपको बोल दिया है 15 सेंटीमीटर रेडियस है और 60 डिग्री सेंटर है, तो आपको सेगमेंट्स के एरिया को फाइंड करना है और पाई की वैल्यू 314 लेने को बोला है। सो छोटा सा ही सर्कल ड्रॉ करूंगा, फिर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सम के अंदर। सो यहाँ पर आपको बोल दिया है दैट दिस एंगल इज 60 डिग्री, द रेडियस आर 15, राइट। सो जस्ट कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेगमेंट्स, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब माइनर और मेजर को आपको कैलकुलेट करना है। फिर से हम ट्राइंगल को नाम दे सकते हैं ओ ए बी, राइट, और यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं सी, ठीक है। सेगमेंट कैलकुलेट करना है तो डेफिनेटली सेक्टर के अंदर से माइनस करना पड़ेगा एरिया ट्राइंगल का, ठीक है। सो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, एरिया ऑफ माइनर, ओके। पहले तो हम प्रूव कर देते हैं कि ट्राइंगल ओ ए बी आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यहाँ पर आपका एंगल अगर 60 है तो ट्राइंगल इक्विलेटरल ही है, तो लिख देगा इन ट्राइंगल ओ ए बी एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड OA is equals to OB, therefore angle OAB is equals to angle OBA is equals to 60 डिग्री। देखो मैंने थोड़ा सा एक स्टेप ऐड कर दिया है इसमें और कुछ नहीं, ठीक है। therefore triangle OAB is an equilateral triangle, ठीक है, ये आपने प्रूव कर दिया। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, कौन सा है माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट बाई एसीबी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर लेना है तो ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट इज √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। दोनों फॉर्मूला के वैल्यूज फॉर्मूला रख के वैल्यूज रख दो। सो दिस एंगल इज 60 डिग्री, नीचे 360 है, यहाँ पर हमें 314 लेना है अपॉन 100 इंटू आर स्क्वायर, तो रेडियस आपको दिया गया है 15 इंटू 15, ठीक है, माइनस √3/4 इंटू ए स्क्वायर दैट इज 15 इंटू 15, ठीक है। डायरेक्टली मैं इसका आंसर लिखना चाहूँगा बिकॉज कैलकुलेशन में मैं टाइम नहीं निकालूंगा, आप लोग डायरेक्टली आप कैलकुलेशन कर सकते हो। सो इफ यू डू द कैलकुलेशन यू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एज 117.75, सो ये आपका आएगा 117.75 माइनस the answer will be 97.3125, 97.3125, और जो लास्ट में डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 20.4375। अब आप बोलेंगे सर ये आपने डायरेक्टली लिख दिया है तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सो कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको स्मार्ट वे में करना है। पहले यहाँ से आप डिडक्ट कर सकते हो, देखो 5 3 5 20, फिर से यहाँ पे डिडक्ट करो 5 3 5 4, ठीक है, 4 ये दोनों डिडक्ट हो जाएंगे, 2 से डिडक्ट करो, जितना हो सकता है छोटा नंबर बनाओ उसके बाद मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर भी आपके पास 4 है, दिस इज 2 to 5, सो पहले 2 to 5 को डिवाइड कर दो 4 से, 1.73 को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आता है उससे, तो आपका डेफिनेटली आंसर आएगा। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन आगे पीछे होता है तो चलेगा, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर 20.4375 है, फॉर सम रीजन यहाँ पे 20.5 समथिंग अगर आपका आंसर आता है इट इज एक्सेप्टेड। सो दिस आंसर शुड बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपका आ गया एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ अ मेजर सेगमेंट आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट
कौन सा है मेजर सेगमेंट? तो मेजर सेगमेंट होगा आपका ओ, सपोज यहाँ पे ले लीजिए आप डी, सो ए डी बी, उसको आप लिख सकते हो एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है आपके पास पाई आर स्क्वायर माइनस, ये वैल्यू आप डायरेक्टली रख सकते हो 20.4375। चलिए, एरिया ऑफ अ सर्कल के अंदर हम लिखेंगे 314/100 इंटू 15 इंटू 15, रेडियस आपका इतना है, माइनस 20.4375। चलिए, इसका भी मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, कैलकुलेशन अब आप समझ गए होंगे। सो इफ यू विल सॉल्व इट विल बी 706.5 minus 20.4375, and the difference will last as 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका लास्ट में आंसर है। तो गाइस आज दो ही सम करेंगे हम, फॉर्मूला में थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो चुका है, बट श्योरली इन द नेक्स्ट लेक्चर आई ट्राई टू डू as much as sum as I can. I hope so the explanation was understandable और आपने उसको अच्छे से समझा होगा। इसके अलावा जो एक्सरसाइज 12.2 के पहले के जो आपके एग्जाम्पल्स है, जस्ट ट्राई टू गो थ्रू दोज एग्जाम्पल्स एंड ट्राई टू सॉल्व दोज एग्जाम्पल्स बाय योरसेल्फ फर्स्ट। फिर अगर आपको नहीं आता है तो आप सॉल्यूशन को देखिए। आई एम डेफिनेटली श्योर दैट आप लोग अगर कंसेप्ट समझे हैं तो उस पार्ट्स को भी समझ पाएंगे, एग्जाम्पल्स को भी समझ पाएंगे और अपने आप से भी कर पाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।